हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ 2023 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਭ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ 1 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ 2 ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ प्रैक्टिस क्लास फस्ट लैके तुहाडे सामने पेश होए आ। इस दे विच असीं कुछ MCQआं दी प्रैक्टिस करांगे। अज दे जिहड़े MCQ ने ओह एक खास टॉपिक दे उत्ते ही बेस्ड ने, पर नैक्सट क्लासेस दे जो तुहानूं MCQ मिलणगे ओह अलग अलग टॉपिक्स दे नाल रिलेटेड होणगे। तां स्टार्ट करन जा रहे हां जी अज असीं पंजाबी लैंगुएज। तां फस्ट MCQ तुहाडे सामने है जी। ਤਾਂ ਇਹ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰ ਪੇਡ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ, ਸੀਟੈਟ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਏਗਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PDFs ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਸ ਨੇ ਜੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਪਏ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ MCQ ਟਾਈਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਰਨ ਕੌਸ਼ਲ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਣਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਨੰਬਰ 2 ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਨੰਬਰ 3 ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਨੰਬਰ 4 ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। LSRW ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ठीक है जी।
इस तरीके नाल यह की ने 4 कौशल ने भाषा कौशल जिन्हों आप आखते हैं। तो मुढ़लियां किहड़ियां हो गई इहदे चों लिसनिंग ते स्पीकिंग यानी कि सुनना ते बोलना। ठीक है जी। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 भाषा विच निपुण बनने लई जरूरी है जेकर किसी ने भाषा दे विच एक्सपर्ट बनना है बच्चा है वो बच्चे नूं आपां भाषा दे विच निपुण बना रहे हैं प्रवीणता लैके आ रहे हैं एक्यूरेसी लैके आ रहे हैं भाषा दे विच तो उसके लिए जरूरी की है भाषा ग्रहण करना जरूरी है उसके लिए ਜਾਂ भाषा का प्रगटावा जरूरी है उपरोक्त दोवें जरूरी नहीं या फिर भाषा अध्यापक जरूरी है। देखो जी अपने सब तो बेस्ट आंसर जिहड़ा वो सिलेक्ट करना हुंदा है तो सब तो बेस्ट आंसर अपने कोल होएगा थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोवें। मतलब कि भाषा दे विच निपुण बनने लई भाषा ग्रहण करना यह सारियां कौशल भी अपनियां विकसित होण ते भाषा का प्रगटावा यह कौशल भी अपनियां विकसित होनी चाहिए ने फिर की हो जाऊगा जी आप भाषा के निपुण बन सकांगे। कल्ला भाषा अध्यापक कुछ नहीं कर सकता। वैसे भाषा अध्यापक वाली ऑप्शन तीसरे नंबर पर पा के चौथी ऑप्शन इदा होंगे भी उपरोक्त सारे तो इस शामिल कर लेना सी पर अपने की करना होंगे ऑप्शन को ध्यान नाल देखना होंगे सब तो बेस्ट आंसर तक अपने पहुंचना होंगे। तो देखो जी ग्रहण करना ते प्रगटा दोनों जरूरी ने तो इस तरीके नाल अपने कोल सी ऑप्शन साडा राइट आंसर इस हो जाएगा। इस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 4 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ग्रहण करके अर्थ समझना किस कौशल का हिस्सा है। मतलब कि ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ग्रहण करना है। ठीक है मतलब कि उन्होंने आप अंदर लैके जा रहे हैं कोई चीज़ ਨੂੰ की कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं तो यही ग्रहण करना ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ते अर्थ समझना। तो ग्रहण करना कि ग्रहण करने वाले कौशल किहड़े-किहड़े सी एक तो सुनना समझना ते एक किहड़ा सी पढ़न कौशल। तो हुण आपां की कर रहे हैं ग्रहण करके अर्थ समझ रहे हैं तो यह किहड़ी कौशल होई सुनन कौशल होई फर्स्ट ऑप्शन इस साडा की हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुनन कौशल जी ये इस आपां ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ग्रहण करते हैं तो उन्होंने अर्थ समझते हैं पहली कौशल है यह सुनना ते समझना तो फर्स्ट ऑप्शन इस साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 5 भाषा कुशलतावां की सही तरतीब की है। मतलब कि ये 4 कौशल आप पढ़िया ने LSRW तो दसे गया है ना तो लिखना सुनना वाचन मौखिक तो ये सब तो बेस्ट सब तो पहले नंबर पर की लिखते हैं जी सुन कौशल। तो सब तो पहले नंबर पर सुन कौशल लिखते हैं नंबर 2 लिख लो। सुन तो बाद गल आए नहीं मौखिक मौखिक किहड़ी है बोलन कौशल नूं आपां मौखिक भी आख दिंदे आ मौखिक कौशल नंबर 4 लिखो। ठीक है। इस तो बाद वाचन कौशल जिन्होंने आपां पढ़न कौशल भी आख दिंदे आ। इस तो बाद है जी लिखन कौशल तो 24-31 तो 24-31 अपने कोल फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है यह इस ते की होएगी जी सही तरतीब होएगी। ठीक है जी। इस चीज़ को तुसीं ध्यान दे इस तरह रखोगे। इस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी एक प्राइमरी अध्यापक वाचन कौशल के अध्यापन नूं शुरू करेगा। मतलब कि प्राइमरी पद्धर की गल है। मैं तुहानूं एक होर डिफरेंस दसां कि तुसीं ये चीज़ ना सोचो लैंगुएज बारे CDP बारे ये ना सोचो भी ये पेपर 1 की चीज़ है पेपर 2 की चीज़ है सेम सिलेबस है सेम ही तरीका है पढ़न पढ़ाने का पर बस थोड़ा जिहा डिफरेंस की हो जाना जिवें इत्थे पुछ रखा है प्राइमरी अध्यापक है ना हो सकता है पेपर 2 दे विच मिडल अध्यापक कह देना है ना जिहड़ा मिडल स्कूल दे विच पढ़ा रहा है वो अध्यापक कह देना। ठीक है भी 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे की गल कर देन तो ये प्राइमरी की गल कर देंगे ने बस इदा क्वेश्चन का फर्क पै जाता है। बाकी सारा सिलेबस सेम है। ठीक है प्रैक्टिस सेम करो थ्योरी सेम करो कोई टेंशन ना लो। तो क्वेश्चन आप ध्यान नाल पढ़ते हैं जी कि एक प्राइमरी अध्यापक वाचन कौशल के अध्यापन नूं शुरू करेगा। मतलब कि जी वाचन कौशल है उसनूं विकसित करना शुरू करना स्टार्ट करन जा रही है एक अध्यापक वह किस चीज़ तो शुरुआत करेगा व्याकरण तो पहला जान सर उन्होंने व्याकरण पढ़ानी शुरू कर दो भी कह दूगा चक्को व्याकरण रख के सामने कह दूगा पढ़ो या फिर सिर्फ कोई पाठ पुस्तक कोई होर पाठ पुस्तक है पाठों वाली है किताब है वो सामने रख के भी पढ़ो या फिर कहानी तो भी कहानी पढ़ाऊगा या फिर तस्वीर कहानी तो। ठीक है। तो देखो गल सुनो वैसे व्याकरण भी कोई माड़ी चीज़ नहीं सिर्फ पाठ पुस्तक है तो ये थोड़ी जी माड़ी चीज़ होगी कहानी भी माड़ी चीज़ नहीं वधिया कहा चीज़ है पर उस तो भी बेस्ट ऑप्शन अपने कोल की पई है कि तस्वीर कहानी तो। मतलब कि जिवें वो नहीं हुंदी कोई मतलब बुक टाइप है हाँ जी मैगजीन हो कोई बुक होगी भी उत्थे की एक फोटो लगी हुई है फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है जिवें कि मान के चलो भगत सिंह की फोटो है
ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ मतलब खरगोश ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਮੰਨ के चलो कोई कहानी पढ़ाई जा रही है ना, इत्थे खरगोश की फोटो है, नीचे उस ते गल लिखी हुई है खरगोश ये गल आखदा है ना। तो इस तरह कोई कां वाली कहानी है, उस दे नाल फोटोआं ने तस्वीरां लगियां होईयां ने, नीचे गल लिखी हुई है। तो वह की करेगा जो पढ़न कौशल का अभ्यास करा रही है अध्यापक, तो वह की करेगा पहला तस्वीर दिखा देगा, करेगा वेखो यही की कर रहे भी कां है जिहड़ा वो की कर रहा है, प्यासा है, पानी तलाश कर रही है। तो नीचे लिखा होगा भी जिहड़ा एक बार की गल है, एक कां सी इदां है ना भी प्यासा कां कहानी शुरू करानी है। तो मतलब कि पढ़ना सिखाने तो पहला फोटो दिखा दूगा, ठीक है जी। तो उन्होंने सुनाऊगा पहला उही गल भी सुनाऊगा तो वह बोल रहे है, मतलब पहला वो ऑलरेडी जिहड़ियां स्किल ने वो विकसित हो चुकियां ने, तो हुण उन्हें पढ़न कौशल वाचन कौशल नूं शुरू करना है। तो वह तस्वीर कहानी तो वेखो ते कहो वाली विधि राही, ठीक है, तस्वीर कहानी तो शुरुआत करेगा, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन साडे इस की हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी प्रश्न नंबर 7, सुनना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर के डायरैक्ट बन जाते हैं, सुनना पा के लिख देंगे भी की है। सुनना प्रगटा कौशल है, मौखिक कौशल है, ग्रहण कौशल है, या उपरोक्त कोई नहीं। हुण देखो गल सुनो, सुनना तुसीं सुन रहे हो, तुसीं की कर रहे हो, मेरी गल नूं ग्रहण कर रहे हो, मैं की कर रहा बोल रहा, मैं गल नूं प्रगटा रहा। तो प्रगटा कौशल तो है नहीं सुनना, ठीक है। तो मौखिक कौशल ये तो अलग चीज होगी, एक अलग कौशल है, सुनना एक अलग कौशल है। तो ग्रहण कौशल ऑप्शन सी साडा इस राइट आंसर हो जाएगा। सुनना की है जी, ग्रहण कौशल है, ठीक है जी। तो इस चीज को तुसीं ध्यान विच रखोगे। इस तो बाद असीं गल करते हाँ जी प्रश्न नंबर 8, शब्द स्कैनिंग अते पंछी झात किस कौशल में शामिल हैं। तो एक तो शब्द है जी स्कैनिंग, ठीक है। तो एक होई पंछी झात। तो स्कैनिंग ते पंछी झात की ने सब स्किल ने, तो किस कौशल दियां किस स्किल दियां सब स्किल ने ये अपन दसना भी किस कौशल में ये शामिल ने, लिखण कौशल च, सुनन कौशल च, वाचन कौशल च, या फिर मौखिक कौशल दे विच। तो ये साडा राइट आंसर हो जाएगा जी अपने कोल कि जो स्कैनिंग ते पंछी झात है, यानी कि स्कैनिंग ते स्किमिंग कह दें पंछी झात नूं इंग्लिश च ना। तो जो आप किसी चीज़ नूं लभ रहे हो, कोई लिस्ट है लगी हुई है, वो लिस्ट के अपना रोल नंबर लभ रहे हाँ, तो आप उत्थे की किहड़ी कौशल वरत रहे हैं, उत्थे आप पढ़न कौशल वरत रहे हैं, है ना। तो आप भी उहदे च लभ रहे हैं, उस चीज़ नूं पढ़ांगे भी इत्थे नाम पढ़ांगे, कोई नंबर लभ रहे हैं, नाम लभ रहे हैं, रोल नंबर लभ रहे हैं, ठीक है। तो वह चीज़ होगी। तो पंछी झात की होगी भी एकदम कोई लैसन लिखा हुआ, कोई कहानी लिखी हुई, वो उत्ते मोटी जी नज़र मार ली, कोई विचार लिखा हुआ उत्ते मोटी जी नज़र मार ली, ठीक है, एकदम नज़र घुमा ली, मोटी मोटा या आइडिया या लगा लिया भी की लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह स्कैनिंग ते पंछी झात की ने, दोनों सब कौशल ने किस दियां, वाचन कौशल दियां। ऑप्शन सी साडा इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रीडिंग दियां सब स्किल्स ने, इस चीज़ को ध्यान विच रखोगे, ठीक है जी। इस तो बाद असीं डिस्कस करते हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9, उकेरना यानी कि स्क्रिबलिंग ते खरड़ा यानी कि ड्राफ्ट, संपादन यानी कि एडिट किस कौशल का हिस्सा हैं। उही गल आ गई, स्क्रिबलिंग, ड्राफ्टिंग ते कह सकते हैं कि एडिट, यही की ने जी किस कौशल दियां, किस स्किल दियां सब स्किल ने, ये तुहानूं दसना आपां ने। इंटरस्टिंग क्वेश्चन बन गया। तो उकेरना की भी कुछ आपां ड्रा कर रहे हैं, खरड़ा की है मतलब कोई किताब लिखनी है अपने, उस तो पहला आप एक कच्चा जिहा काम तैयार कर लिया, संपादन कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, कुछ कट्टना कुछ ऐड करना वो कर रहे हैं। तो यही कि लिखण कौशल दे शामिल है ये, ठीक है जी। तो लिखण कौशल दे शामिल है, ग्राफिक एस्पैक्ट है एक लैंग्वेज स्किल का, ठीक है। इस चीज़ तुसीं ध्यान विच रखो, ग्राफिक एस्पैक्ट हो गया, लिखण कौशल दे ये सब चीज़ां शामिल हैगियां ने। तो इस तरीके नाल दोस्तों यही 9वां क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए। इस तो बाद एक घैंट जिहा क्वेश्चन हो रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो अज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 5वीं जमात का एक विद्यार्थी शेर ते शेर शब्दां नूं, यह दो शब्द ने जिहड़े शेर ते शेर शब्दां नूं इक्को तरीके नाल उचारदा है, मतलब दोनों नूं शेर शेर पढ़दा है, हो सकदा उन्होंने शेर शेर पढ़दा होवे, ठीक है। अध्यापक के तौर पर तुसीं उस दी किस स्किल नूं इत्थे आना सी किस कौशल नूं, ठीक है जी, किस कौशल नूं विकसित करोगे। तो दसो जी किस कौशल नूं विकसित करोगे, लिखना ते पढ़न कौशल, ठीक है, या फिर सुनना ते लिखण कौशल, सुनना ते पढ़न कौशल, सुनना ते बोलण कौशल। हुण देखो प्रॉब्लम कित्थे है भी, एक तां ओनू मतलब इत्थे कह सकते हैं
ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।